अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। और रवां हफ्ते हमने एक अहम पेशरफ देखी और वो एक अहम पेशरफ थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई आमने सामने आ चुकी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक अहम पेशरफ सामने आई जब वहाँ सियासी सतह पर हालात कशीदा हुए और ख़राब होने लगे, तो फिर बीसीसीआई की जानिब से आईपीएल में शामिल बांग्लादेश के खिलाड़ियों से मुताल्लिक जो है उन्होंने एक डेवलपमेंट सामने लाई और उन्होंने कहा कि जो आईपीएल में टीम थी शाहरुख खान की, उसकी टीम से जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे मुशफ़िकुर रहीम, उनको जो है टीम से फारिग करने से मुतालिक जो है बताया गया और कहा गया कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनको इस वक्त आईपीएल का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों की जानिब से शदीद जो है रद्द-ए-अमल सामने आया, ना सिर्फ बांग्लादेश के खिलाड़ियों की जानिब से, जबकि बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड थी उन्होंने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। जिसके नतीजे में हमने देखा कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने कहा कि अगर आईपीएल में हमारे खिलाड़ियों को मौका नहीं मुयस्सर होगा तो फिर हम वर्ल्ड कप 2026 जो रवां साल खेला जाना है उसमें भारत सफ़र नहीं करेंगे। एक अहम मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया। इसके बाद आईसीसी की जानिब से ही मुसलसल पेशरफ सामने आई है। उन्होंने इस बात पर जोर डाला है कि बांग्लादेश की टीम ट्रैवल करे, जबकि अब तक बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस बात पर आमादा है कि वो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं इंडिया नहीं जाएंगे। और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी अपना यही मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। आया ये मामला कहाँ जा रहा है, कहाँ हम देख रहे हैं इसको सेट होते हुए, क्या आया ये मामला हल होगा या फिर मज़ीद कशीदा होगा, ये एक अहम सवाल है जिस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेश के एक मारूफ सहाफ़ी हैं जनाब राना बाद साहब। ही जॉइन मी फ्रॉम बांग्लादेश। First of all, really thanks to having you in my program, Rana Saab. And now what you are observing from Bangladesh, the way Bangladesh Cricket Board react on BCCI matters, do you believe this matter will be solved down easily or it will be more critical? Thank you for joining here. Thank you. It is not easy. It is not easy, but I think if we think from the sporting way, it will be sorted out in soon. But it will be not very easy. But now at the current situation, it is very critical. It is very critical. It is not easy. It's not easy. But do you believe the way Bangladesh Cricket Board react, they sound very desperate, and the way they react, the desperation which is coming out from BCCI, it is very vulnerable. It look like they are isolating not only Pakistan from the one hand, they are isolating Bangladesh Cricket Board from the other hand. So what policies Bangladesh Cricket Board have now if they try to not be a part of World Cup? So what challenges will Bangladesh Cricket Board and cricketers will face by ICC? Look, when BCCI, I think it was very hasty decision from BCCI. They shouldn't do that before even not only the before T20 World Cup. Anytime they shouldn't do that, because when you pick the player from the auction, of course they had the NOC from their government or their green signal or clarification from their government. When you pick from the auction, then you shouldn't release him. It was very disrespectful for any players, for any country. But it didn't happen in not only recent past. In past, we didn't see like that picture. So I agree on your point of view. But really, it is not feeling very warm from the message coming out from BCCI, even from the IPL management, and it is very hard and very uncertain message which came out. But now the way Bangladesh Cricket Board react, and they not only react, they have given their solid reply, strong reply. So do you believe the way the aggression will be respected by the ICC, and they will fill your demands which Bangladesh Cricket Board put on the case? They told that they will not travel to India for the upcoming World Cup 2026. So these demands will be filled up. Yeah, I'm coming to this point. Actually, yes. Just look the
current situation, the Bangladesh and the Indian diplomatic relation in current days. So it will be, BCB never won't go without the instruction by their government. So government stance is very strong. So BCB are now in this point very strong, and ICC now thinking about what can they do, and of course host is the Indian Cricket Board. So I think they are going to find out a good solution, win-win situation for both countries. Bangladesh will participate this tournament, and India also hosts the matches. Now they're trying to fix out that solution. What I have heard from today's sources that BCCI now held a meeting. I don't know whether it's official or unofficial, but they held a meeting about the Bangladesh situation or Bangladesh issue or Bangladesh demands. I think they will provide few solutions, few options for Bangladesh Cricket Board. And yeah, it's very, Indian Cricket Board now never wants to relocate the matches from India to Sri Lanka. They don't want that. But Bangladesh Cricket Board clearly they wrote the letter to ICC yesterday or last day, where they sent to a letter and they raising their concern about the security concern, and they sent everything in detail that we want that, and then we will go to play there. So I think Indian Cricket Board will now thinking about how can they fix out or they sorted out the issue. So yeah, it is very difficult to say at this moment, just at this moment, that what will be happening in next few days. But I can say BCB, Bangladesh Cricket Board, still is strong. They want to know. Hello. Okay, continue, Mr. Rana sir. Continue. Bangladesh Cricket Board, they are very strong on their stand because they want to know what will be your solutions about the area of security concern. So I think it is very difficult, very challenging situation, not only for Bangladesh, it also for Indian Cricket Board. It's also for the Indian Cricket Board. What your sources giving you the update regarding the Bangladeshi players which is going to take part in IPL? Are they interested to join PSL now, and do they have plans to join PSL? Yeah, why not? Why not? They also play regular playing in PSL. They are regular play. You know, last time I think 3 or 4 cricketers played for in PSL. So it is not difficult for Bangladeshi players because PSL always 3 or 4 cricketers they picked up Bangladeshi cricketer. But this time I think PSL should give more importance, or they should pick more players from Bangladesh. बिल्कुल आपने ठीक फरमाया और आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। जनाब राना अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। रियली थैंकिंग टू हैव यू इन माई प्रोग्राम एंड यू आर टॉकिंग ऑन द मैटर विच इज़ वेरी सीरियस मैटर जिस पर बात कर रहे थे जनाब राना अब्बास साहब। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। वक्त तो यहाँ शॉर्ट ब्रेक का, देखते हैं स्पोर्ट्स 21। क्या अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। और रवां हफ्ते हमने एक अहम पेशरफ देखी और वो एक अहम पेशरफ थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और BCCI आमने सामने आ चुकी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक अहम पेशरफ सामने आई जब वहाँ सियासी सतह पर हालात कशीदा हुए और ख़राब होने लगे, तो फिर BCCI की जानिब से IPL में शामिल बांग्लादेश के खिलाड़ियों से मुताल्लिक जो है उन्होंने एक डेवलपमेंट सामने लाई और उन्होंने कहा कि जो IPL में टीम थी शाहरुख खान की, उसकी टीम से जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे मुशफ़िकुर
रहीम उनको जो है टीम से फारिग करने से मुतालिक जो है बताया गया और कहा गया कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनको इस वक्त आईपीएल का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों की जानिब से शदीद जो है रद्द-ए-अमल सामने आया, ना सिर्फ बांग्लादेश के खिलाड़ियों की जानिब से, जबकि बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड थी उन्होंने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया, जिसके नतीजे में हमने देखा कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने कहा कि अगर आईपीएल में हमारे खिलाड़ियों को मौका नहीं मुयस्सर होगा तो फिर हम वर्ल्ड कप 2026 जो रवां साल खेला जाना है उसमें भारत सफ़र नहीं करेंगे। एक अहम मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया। इसके बाद आईसीसी की जानिब से ही मुसलसल पेशरफ सामने आई है। उन्होंने इस बात पर जोर डाला है कि बांग्लादेश की टीम ट्रैवल करे, जबकि अब तक बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस बात पर आमादा है कि वो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं इंडिया नहीं जाएंगे, और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी अपना यही मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। आया ये मामला कहाँ जा रहा है, कहाँ हम देख रहे हैं इसको सेट होते हुए, क्या आया ये मामला हल होगा या फिर मज़ीद कशीदा होगा, ये एक अहम सवाल है जिस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेश के एक मारूफ सहाफ़ी हैं जनाब राना बाज साहब। ही जॉइन मी फ्रॉम बांग्लादेश। First of all, really thanks to having you in my program, Rana Saab. And now what you are observing from Bangladesh, the way Bangladesh Cricket Board react on BCCI matters, do you believe this matter will be solved down easily or it will be more critical? Thank you for joining here. Thank you. It is not easy. It is not easy, but I think if we think from the sporting way, it will be sorted out in soon. But it will be not very easy. But now at the current situation, it is very critical. It is very critical. It is not easy. It's not easy. But do you believe the way Bangladesh Cricket Board react, they sound very desperate, and the way they react, the desperation which is coming out from BCCI, it is very vulnerable. It look like they are isolating not only Pakistan from the one hand, they are isolating Bangladesh Cricket Board from the other hand. So what policies Bangladesh Cricket Board have now if they try to not be a part of World Cup? So what challenges will Bangladesh Cricket Board and cricketers will face by ICC? Look, when BCCI, I think it was very hasty decision from BCCI. They shouldn't do that before even not only the before T20 World Cup. Anytime they shouldn't do that, because when you pick the player from the auction, of course they had the NOC from their government or their green signal or clarification from their government. When you pick from the auction, then you shouldn't release him. It was very disrespectful for any players, for any country. But it didn't happen in not only recent past. In past, we didn't see like that picture. So I agree on your point of view. Really, it is not feeling very warm from the message coming out from BCCI, even from the IPL management, and it is very hard and very uncertain message which came out. But now the way Bangladesh Cricket Board react, and they not only react, they have given their solid reply, strong reply. So do you believe the way the aggression will be respected by the ICC, and they will fill your demands which Bangladesh Cricket Board put on the case? They told that they will not travel to India for the upcoming World Cup 2026. So these demands will be filled up. Yeah, I'm coming to this point. Actually, yes. Just look the current situation, the Bangladesh and the Indian diplomatic relation in current days. So it will BCB never won't go without the instruction by their government. So government stance is very strong. So BCB are now in this point very strong, and ICC now thinking about what can they do, and of course host is the Indian Cricket Board. So I think they are going to find out a good solution, win-win situation for both countries.
Bangladesh will participate this tournament, and India also hosts the matches. Now they're trying to fix out that solution. What I have heard from today's sources that BCCI now held a meeting. I don't know that it's official or unofficial, but they held a meeting about the Bangladesh situation or Bangladesh issue or Bangladesh demands. I think they will provide few solutions, few options for Bangladesh Cricket Board. And yeah, it's very, Indian Cricket Board now never wants to relocate the matches from India to Sri Lanka. They don't want that. But Bangladesh Cricket Board clearly they wrote the letter to ICC yesterday or last day, where they sent to a letter and they raising their concern about the security concern, and they sent everything in detail that we want that, and then we will go to play there. So I think Indian Cricket Board will now thinking about how can they fix out or they sorted out the issue. So yeah, it is very difficult to say at this moment, just at this moment, that what will be happening in next few days. But I can say BCB, Bangladesh Cricket Board, still is strong. They want to know. Hello. Okay, continue, Mr. Rana sir, continue. Bangladesh Cricket Board, they are very strong on their stand because they want to know what will be your solutions about the area of security concern. So I think it is very difficult, very challenging situation, not only for Bangladesh, it also for Indian Cricket Board. It's also for the Indian Cricket Board. What your sources giving you the update regarding the Bangladeshi players which is going to take part in IPL? Are they interested to join PSL now, and do they have plans to join PSL? Yeah, why not? Why not? They also play regular playing in PSL. They are regular play. You know, last time I think 3 or 4 cricketers played for in PSL. So it is not difficult for Bangladeshi players because PSL always 3 or 4 cricketers they picked up Bangladeshi cricketer. But this time I think PSL should give more importance, or they should pick more players from Bangladesh. बिल्कुल आपने ठीक फरमाया और आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। जनाब राना अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। रियली थैंकिंग टू हैव यू इन माई प्रोग्राम एंड यू आर टॉकिंग ऑन द मैटर विच इज़ वेरी सीरियस मैटर जिस पर बात कर रहे थे जनाब राना अब्बास साहब। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। वक्त तो यहाँ शॉर्ट ब्रेक का, देखते हैं स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और एक अहम मामला था जिस पर हम बांग्लादेश में मौजूद जो बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं उससे गुफ्तगू कर रहे थे कि आया BCCI और इस वक्त BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो इस वक्त कशीदा सूरत आलदम हम देख रहे हैं उस पर उनका क्या मौक़िफ़ था। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ा एक अहम नुक्ता, एक अहम पॉइंट है जिसमें इस सिनेरियोज़ का ना सिर्फ इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सामना करना पड़ रहा है, इसके माजी में काफ़ी हमने जो हैं ना सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं बल्कि हमने इस मामले का बड़े हद तक सामना किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को BCCI ने लॉबिंग करके हमेशा से आइसोलेट करने की जो कोशिश की है, इसके जो नताइज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा भुगते हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ ना सिर्फ देखा, उस पर काम किया, बड़ा वसी तजर्बा है जनाब खालिद महमूद साहब का जो साबिक चेयरमैन PCB के मनसब पर ना सिर्फ फायज़ रहे, बड़े ज़िम्मेदाराना तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों को वहाँ उन्होंने अदा किया। इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं उसको बड़ी बारीक बीनी के साथ देखते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम का पार्ट बने हैं। मैं यही जानना चाहूँगा इस वक्त आप समझते हैं कि जो हिकमत अमली BCCI को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनाई, हम बार बार कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब पहले ये कर लेते, तो वो चैम्पियंस ट्रॉफी का जो मामला था इसके बाद हमने कुछ प्लान्स बनाए। चैम्पियंस ट्रॉफी में जो होस्टिंग राइट्स थे उसको तो हमने गवा दिया, इससे पहले जो चेयरमैन रहे उन्होंने भी वो पॉलिसीज अपनाई नहीं। आप समझते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंडिया की ब्लैकमेलिंग का जवाब दे रहा है, हमें भी इसी तरीके से बड़ा दिलेराना और बोल्ड जो है फैसले लेने चाहिए थे?
जी बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि इस किस्म की जो इसको आप ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं अंग्रेजी में, ये इसको मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है जो कि वो कर रहे हैं, और उसका जवाब बहुत सख्त आना चाहिए था। और सही। ये जवाब जो होगा वो ये नहीं है कि दो फ्रीकैन के दरमियान एक बातचीत हो कि ये जवाब है हमारा। बात दरअसल ये है, अगर जरा भी ठंडे दिल से जायजा लिया जाए क्रिकेट की सूरत हाल का, आप देखेंगे कि 150-200 साल हो चुके हैं क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को आए हुए, और अभी तक कुल मिला के मेरा ख्याल है 10 क्रिकेट बोर्ड हैं, मुल्क हैं जिनकी टीमें टेस्ट मैच खेल सकती हैं। यानी 200 या उससे भी ज्यादा तादाद है मुल्कों की दुनिया में, और हमारी क्रिकेट जो है वो टेस्ट की सतह पे सिर्फ 10 मुल्कों तक या 11 मुल्कों तक पहुंची है। ये कोई ऐसी खुशकुन सूरत हाल नहीं है, बल्कि इसमें तो जितना भी इजाफा हुआ जाए कर दिया जाए वो बेहतर है। अब जिस तरह के रवैये हैं पुराने मुल्कों के, जिसमें भारत भी शामिल है, इस किस्म के रवैयों से तो ऐसे लगता है कि वो 10-11 की तादाद मजीद सुकड़ के कोई शायद 6-7 पे रह जाएगी। यही वो चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये वक्त है जिसमें पाकिस्तान को, बांग्लादेश को एक टीम बन के इकट्ठे होके तमाम दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए, बताना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो जिनको आप कहते हैं यानी क्रिकेट की बुनियाद डालने वाले ममालिक, वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि देखिए ये जो रवैया है इसकी वजह से जो बचे कुचे मुल्क हैं वहां से भी क्रिकेट खत्म होती जाएगी। तो आपको इसके खिलाफ मौक़िफ़ सख्त इख्तियार करना चाहिए, मिलकर इख्तियार करना चाहिए। ये जो बार बार मैं सुनता हूँ कि जी आईसीसी तक मामला ले जाए, आईसीसी पे मुकम्मल हावी हो चुका है भारत, उनका सरबराह जो है अच्छा सर, आईसीसी का, मुझे वो भी काइंडली ये बात की बताइएगा, है। खालिद महमूद साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा, इस वक्त ना सिर्फ इन तमाम तर ब्लैक मेलिंग का है जिसको आप गुंडागर्दी भी कह रहे हैं, आप समझते हैं अब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इसके विक्टिम बन चुके हैं, हमें कुछ इस तरह की लॉबिंग करनी चाहिए, इस तरह से दीगर बोर्ड्स के साथ राब्ते करने चाहिए, उनको कायल करना चाहिए कि बीसीसीआई को जो आपने फ्री हैंड दिया है अब उस पर नजरसानी करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि ये जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बदमाशी है इसे किसी तरह से रोका तो जाए। जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं क्रिकेट के, और जिनकी अहमियत है, जिनकी आवाज भी सुनी जाती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उन तक ये लॉबी की जाए, उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि जो सूरत हाल आप देख रहे हैं वो क्रिकेट के लिए बहुत ही तबाहकुन है, क्रिकेट को मजीद खत्म करके रख देगी। तो आप मेहरबानी करके इस पे सारी बाकी मुल्क जो हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, चाहे एसोसिएट ममालिक हैं, चाहे कि फुल टेस्ट स्टेटस वाले ममालिक हैं, सारे इकट्ठे होके इस पे वो कोई ना कोई मामला करें ताकि ये चीजें रुक सकें। उनको पहले ये पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि वो ये भारत जो है ये इसकी पॉलिसी ये है कि इन दो बड़े मुल्कों के सामने तो बड़ा बीबा बन जाता है, बल्कि इस हद तक वो बन जाता है कि वो, आपको याद होगा अच्छा, कि लेकिन वो अभी मेरी खालिद महमूद साहब गुफ्तगू हो रही थी बांग्लादेश में मौजूद बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट से, और उन्होंने ये बताया कि इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़ा मुतमईन है अपने ये जवाबात जमा कराने के बाद, और वो कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत ऑप्शन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास मौजूद है बजाय बीसीसीआई के पास ऑप्शंस होने के। तो इससे तो ये मालूम हो रहा है शायद हमने माजी में जो गलतियां की उन गलतियों से आज तक हम सीखे नहीं। चेयरमैन नजम सेठी जब साहब चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया, मोहसिन नकवी साहब ने होस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। आप नहीं समझते अगर उस वक्त भी पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता तो बांग्लादेश की टीम को, जिस तरह बांग्लादेश की टीम इस वक्त बीसीसीआई को मजबूर कर रही है, तो हम इंडियन टीम को और इंडियन बोर्ड को मजबूर करते, वो पाकिस्तान आते और हम पूरा इवेंट को होस्ट करते। जी मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और आपको याद होगा उस वक्त की बहुत सी आवाजें मुल्क के अंदर से उठी थी जिनमें मैं भी शामिल था कि हमें ज्यादा सख्त स्टैंड लेना चाहिए, हमें भारत को इसके साथ उनकी हरकतें करने से रोकना चाहिए, हमें जाके दूसरे मुल्कों को सारी सूरत हाल बतानी चाहिए, लॉबी करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। जब नौबत यहाँ तक पहुंचती है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ना कोई लॉलीपॉप जो है वो दिया जाता है, और हमारे जैसे मुल्क जो है फौरन उसको कबूल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बहुत ही अच्छा मौका है, मैं समझता हूँ कि
पाकिस्तान अकेला नहीं है, वो बांग्लादेश इसके साथ शामिल है। दोनों मुल्क मिलके अगर ये आवाज़ उठाते हैं और ये आवाज़ जो है पहुंचती है जो सफेद फार्म मुल्क है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और शायद न्यूजीलैंड भी शामिल हो जाए, तो वहाँ पे ये बात बड़ी मौसर हो सकती है। मुझे ये अंदाज़ा है कि इस खित्ते में जो ममालिक हैं वो पूरी तरह भारत के काबू में है। मसलन श्रीलंका भी उनके कहने से बाहर नहीं जा सकता, अफगानिस्तान भी उनकी सुनता है, लेकिन बाकी और मुल्क भी तो मौजूद है। हमें जाके उन तक पैगाम पहुँचाना चाहिए और इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छा मौका है। जैसे वो भारत जो है अपने पाँव से खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अपनी जो एक उसका सेकुलरिज्म वाला एक चेहरा है उसको वो धब्बा लगा रहा है। तो इस मामले में हमें बड़ा सरगर्म होना चाहिए, हमारा राब्ता होना चाहिए बराह रास्त बांग्लादेश। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर मेरी हाल ही में गुफ्तगू हो रही थी जनाब साबिक चेयरमैन पीसीबी तौकीर ज़िया साहब से। वो कह रहे थे कि इवेंट हमारे हाथ में था एशिया कप का, और उसकी होस्टिंग के तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह के तौर पर नकवी साहब जो है वहाँ अपनी खिदमत अदा कर रहे थे। लेकिन वहाँ जो फिर उन्होंने गलतियाँ की, वो गलतियाँ होनी नहीं चाहिए थी कि आप अपने इवेंट के सरबराह हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी टीम ही जो है इवेंट से बाइकआउट करेगी, और इस तरह के जो बयानात दिए। फिर बाद में हमने देखा उन्होंने नजम सेठी को बुला लिया, उन्होंने बुलाया रमीज़ राजा को। आप जैसे आप भी साबिक चेयरमैन हैं, तौकीर ज़िया साहब भी साबिक चेयरमैन हैं, आप लोगों के पास वसी तर तजर्बा है, अहम जिम्मेदारियां अदा की हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप लोग आपसे रब्ता किया उन्होंने, क्योंकि नजम सेठी साहब और रमीज़ राजा से तो रब्ता किया, तौकीर ज़िया साहब ने, नकवी साहब ने नहीं किया था, तो आपसे किया रब्ता? कोई रब्ता हुआ? नहीं, मुझसे कोई रब्ता नहीं किया गया, बल्कि मैं आपको आज पहली दफा बता रहा हूँ कि वो मैं जो सच्ची बातें करता हूँ क्रिकेट टीम के बारे में कि उसके हालात कैसे हैं, क्या है, वो क्रिकेट बोर्ड को पसंद नहीं आती हैं, और इस नापसंद होने की वजह से ही वो मुझसे रब्ता नहीं किया जाता। मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर वो रब्ता करें तो मैं इंशाल्लाह हमेशा मुफीद और अच्छा मशवरा ही दूंगा। तो वो उन लोगों को बुलाते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बहरहाल वो उनकी मर्जी है, मैं उससे मजीद बिल्कुल बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने हमेशा जो भी गुफ्तगू की है वो पाकिस्तान के क्रिकेट के हक में और उसके मुतालिक मुस्बत बात ही की है। आपने चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ इशारा दिया है। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये भी बताइए कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं IPL का मामला तो सामने आया, जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज करना पड़ा, लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 होने जा रहा है। आप इसका आगाज़ और अब इसका सीज़न 11 किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? इस वक्त जो कल हमने बिडिंग देखी दो टीमों की, आप मुतमईन हैं? मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें चल रही हैं कि बहुत महंगी टीम्स जो हैं बेची गई हैं, लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन हम देख रहे हैं वो भी चल रही है। वो कह रहे हैं कि इससे महंगी तरीन टीम माजी में आप बेच चुके थे। मुल्तान सुल्तान जो है 6.35 बिलियन रुपीस की आपने सेल की थी, तो उससे तो मतलब काफ़ी ऐसे तदारुक हैं जो सामने आ रहे हैं। जी देखिए, इसमें बहुत ही यानी खुश होने वाले पहलू तो हैं कि एक आपका इवेंट था जिसको 10 साल हुए हैं, अब उसकी शोहरत इतनी फैल चुकी है और उसकी अफादियत इतनी मानी गई है कि उसमें जो 2 नई टीमें आई हैं उन्होंने क्रिकेट बोर्ड और बाकी लोगों की तवक्कुआत से बहुत बढ़ चढ़ के उसकी कीमत लगाई है। ये तो बड़ा ही खुशकुन चीज़ है, लेकिन अल्लाह करे कि ये वाकई मामला ऐसा हो और फिर ऐसे ना हो कि किसी टीम को माली दबाव की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर निकलना पड़े। तो अच्छी चीज़ है, मैं तो खुश हूँ कि अगर जितना भी ये इसकी तस्वीर आई हो तो बड़ी अच्छी बात है, और इसमें क्रेडिट यकीनन देना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को और ख़ास तौर पर उसके चेयरमैन साहब को, क्योंकि वो एक अच्छी कारोबारी शोहरत भी रखते हैं। उन्होंने अपने चैनल वगैरह बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, उनकी सियासत में भी बड़ा असर रसूख है, तो उनका क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा। अल्लाह करे ये इसी नज़र पर चलते रहे, और ये हमारा जो PSL है इसकी जो शोहरत PSL भी पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रांड बने और सामने आए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने जनाब। खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन PCB हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। खालिद महमूद साहब अपने मौक़िफ़ से आपको आगाह कर रहे थे और यही कह रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर जो फैसले हो रहे आए उसकी हमेशा से उन्होंने गलतियों की ही निशानदेही की है।
जो एक अहम नुक्ता रहा है। अच्छा, एक अहम नुक्ता ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम और श्रीलंका के दरमियान जो है दूसरा T20 मैच खेला जाना था, और अब तक बारिश के पेश नज़र जो है अब तक टॉस नहीं हुआ है, और टॉस ना होने की वजह से जो है मैच बारिश की वजह से डिले हो चुका है। और अब देखना ये होगा कि आया आज का मैच होता है नहीं होता है। लेकिन इसमें एक अहम पॉइंट ये है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है हालिया सतह पर, उसका जो ग्राफ है वो उस पर मुसलसल बात की जा रही है। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं यूके से पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और बड़ी ज़बरदस्त जो है निगाह रखती है ख़ास तौर पर पाकिस्तान में होने वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर, बिलखुसूस क्रिकेट के हवाले से, और इनसे बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सितारा अंजुम, आपने टाइम दिया और बड़े शॉर्ट पीरियड पर हमारे प्रोड्यूसर ने आपको लाइन अप किया। लेकिन मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, इस वक्त आपने हमें ज्वाइन तो किया है लेकिन साथ साथ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मारूफ सहाफ़ी और पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत मोतबर नाम जनाब शाहिद हाशमी साहब, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है। सितारा, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूँगा कि आप समझती हैं इस वक्त जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच हो रहा है, जो टीम पिक एंड चूज़ की गई, ये दुरुस्त नाम थे, बेहतर इंतखाब किया, हमारे सेलेक्टर्स ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अदा की? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम ताबिश। तो ये है कि देखें, जो अभी सिलेक्शन की है इन्होंने श्रीलंका के स्क्वाड के लिए, तो इसमें 2-3 नाम तो ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, प्रीवियस परफॉर्मेंस देखी जाए, रीसेंट परफॉर्मेंस देखी जाए, जो मुख्तलिफ लीग्स में हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उसकी बेस पे, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे वो नहीं मतलब टीम में जगह बनाते हुए दिखाई देते। जहां आप लोग बात करते हैं कि आप अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड करते हैं, उनको जो है वो कंसीडर करते हैं, तो फिर जो आपका सबसे बड़ा परफॉर्मर है डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में, सुफियान मुकीम, जिन्होंने कि 9 मैचेस के अंदर 20 विकेट्स ली हैं, तो उनका क्या कसूर है? उनको क्यों मतलब आपने स्क्वाड में नहीं डाला? फिर ये कि आपने उनकी जगह जो है वो उस्मान तारिक को डाला, ठीक है उन्होंने हैट्रिक की है, लेकिन अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देखें तो ये कि मेरा ख्याल है सुफियान मुकीम जो है वो ज़्यादा डिजर्व करते थे। और इसी तरीके से अगर आप फ़खर ज़बान की परफॉर्मेंसेस को देख लें, जिस तरीके से उन्होंने अभी खेला है ILT T20 के अंदर, कि वो हिट एंड मिस हैं, मतलब 5 मैचेस आप उनको देंगे, 5 में से 3 में या 4 में वो फेल होंगे, 1 में वो स्कोर करेंगे। तो अगर इसी किस्म की परफॉर्मेंसेस आपको देनी थी तो मतलब हसन नवाज क्या बुरी चॉइस था? अगर आप उनको भी 5 मैच देते और वो भी जो है 2 में या 3 में फेल होके 2 में तो बना ही देते। तो कहने की बात यह है कि आप उन्हीं तमाम खिलाड़ियों के साथ नहीं, आगे हसन जाना नवाज को आपने 5 या 6 चाहते हैं। मैचेस नहीं, आपने उन्हें 10 से ज्यादा मैचेस दिए, उनकी परफॉर्मेंस जी, वैसी तसल्ली बख्श नहीं थी, और फिर आपने जहां जिस नंबर पे शायद उन्हें आजमाने की कोशिश की वो उसके लिए ओरिएंटेड भी नहीं थे। नहीं, मैं अभी रिसेंटली बता रही हूँ ना, क्योंकि देखें अगर इसी तरीके से जो है वो आप रिसेंट मैचेस देख ले, देखे देखने को तो आप 10 मैचेस भी देख लेंगे, तो ये कि रिकॉर्ड उनका निकाल कर देख लें कि फेलियर का जो रेशो है वो कितना है और सक्सेस का जो नहीं, असल रेशो है वो कितना में है। डोमेस्टिक पाकिस्तान की उन्होंने खेली भी नहीं उस तरीके से, उन्हें वो एक्सपोजर डोमेस्टिक का पता नहीं है। यहाँ एक ये भी नाइंसाफी जी, है कि जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है वो बेचारा डोमेस्टिक खेलता है, और जो लीग्स क्रिकेट के में परफॉर्म कर लेता है उसके लिए इजीली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्रिकेट टीम के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। शाहिद हाशमी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, आपसे सवाल करूँगा इस हवाले से। आप मुतमईन है इस वक्त जो सिलेक्शन हुई है? क्योंकि बातें तो हो रही थी अहमद दानियाल की, मास सदाकत की, दीगर और नाम थे जो परफॉर्म कर चुके थे, जिन्होंने डिलीवर किया था, लग रहा था शायद ये खिलाड़ी टीम का पार्ट होंगे, लेकिन फिर आपने अपने फेवरेट्स को मौका दे दिया। शादाब आ गए टीम के अंदर, उससे पहले उन्होंने बयान दिया था कप्तान ने कि वो नायब है मेरे। तो क्या ये वजह है कि फेवरेटिज्म का कल्चर अब भी टीम में जारी और सारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फेवरेट्स को या कोई किसी उससे पाकिस्तान की नेशनल टीम में नहीं आ सकता, लेकिन माइक हसन का सिलेक्शन है, एक सिलेक्शन कमेटी है, वो 20 खिलाड़ी देती है, फिर उसे 15 फाइनल करते हैं माइक हसन और उनकी जो टीम है एनालिस्ट की। तो ऐसा कुछ नहीं है। शादाब एक नॉन परफॉर्मर है, हाँ ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, फिर उसकी सर्जरी हुई, लेकिन बिग बैश में उसने एक मैच में 4 आउट किए, एक मैच में 2 आउट किए, 40 किया, 30 किया, और वो एक इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान की टीम का। और ये बात जरूर है कि वो माइक हसन का फेवरेट है, लेकिन शादाब की जिससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो शादाब का कंपैरिजन अगर अबरार से बनता है तो अबरार भी टीम में खेल रहा है। हाँ, उस्मान तारिक को अब मौका मिलना चाहिए। अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि कौन से प्लेयर का किससे मुकाबला है। अब अगर
सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं तो सुफियान मुकीम का मुकाबला मोहम्मद नवाज से। मोहम्मद नवाज बैटिंग भी अच्छी करता है, पिछले साल तीन सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज था। पिछले साल जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें सबसे ज्यादा उसकी T20 इंटरनेशनल में दिखते हैं। अगर नवाज है तो फिर सुफियान का आना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक ही तरह के दो बॉलर नहीं रख सकते आप, और अबरार को अक्सर वो रेस्ट करा के उस्मान को मौका देता है। यकीनन वो उस्मान को मौका देगा इस 3 मैचों की सीरीज में। तो उसकी नजर में तो अपने 15 उसने पक्के किए हुए, वो 1-2 प्लेयरों को चेक कर रहा है कि किस तरह उसने विकेट कीपर का स्लॉट पूरा करना है। रिजवान अब स्कीम ऑफ थिंग्स से निकल गए, बिग बैश में भी कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को दरअसल तबसरा करते हुए या बात करते हुए ये देखना चाहिए कि कंपैरिजन किससे है। हसन नवाज की अभी बात हो रही थी और बहुत से लोग बात कर रहे हैं। हसन नवाज टॉप ऑर्डर का प्लेयर था, लेकिन टॉप ऑर्डर में साहबजादा फरहान, साइम अयूब अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बना पाया। ट्राई सीरीज उसने खेली, वो स्पिनर्स पे बुरी तरह एक्सपोज हो गया। अब जो श्रीलंका में कंडीशन होंगी वो स्पिनर्स की होंगी, इसलिए शायद हसन नवाज को नहीं रखा और हसन नवाज की जगह अब समद को रखा है। समद ट्राई सीरीज जो पिंडी में हुई थी उससे पहले इंजर्ड हो गया, वरना वहां पे उसे चेक किया जा सकता था। तो प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं होता कि पसंद और नापसंद पे। हाँ, एक आध प्लेयर जरूर होता है, जैसे शादाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन शादाब कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। शादाब एक ऑलराउंडर है, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। ठीक है उसके स्टैट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम का एक हिस्सा रहा। आप कितना बेहतर समझती हैं सितारा, पाकिस्तान की टीम इस वक्त काफ़ी ऑलराउंडर्स पर मुश्तमिल है और यही शायद हिकमत अमली है माइक हेसन की कि ऑलराउंडर्स के ज़रिए शायद मैच जीता जा सके। आप समझती हैं ये फार्मूला काम करेगा श्रीलंका में वर्ल्ड कप के दौरान? जी देखिए, वही मैं बात उसी पे करूंगी जो आप कह रहे थे ना कि कंपैरिजन आप कर नहीं सकते सुफियान मुकीम का। उनका कंपैरिजन बनता है, कंपटीशन डायरेक्ट बनता नवाज के साथ, तो वो नहीं बनता क्योंकि नवाज को आपने ऑलराउंडर की हैसियत से लिया है कि वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। सुफियान जो है वो एक स्पेशलिस्ट आपका बॉलर है, तो वो ऑलराउंडर की कैपेसिटी में नहीं खेलता टीम के अंदर। और जहां परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली जो विकेट्स आपको मिलेंगी, तो वहां पर आपको थोड़े अरसे पहले जो याद होगा कि माइक हसन ने बाबर आजम को ये कह के टीम से ड्रॉप किया था कि आपका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है और आपकी जो स्पिन को खेलने की टेक्निक है वो ठीक नहीं है, तो आप उसके ऊपर काम करें। तो उन्होंने उसमें कोई काम नहीं किया, ना कोई डोमेस्टिक में खेला। अगर आप BBL की परफॉर्मेंस को उठा के देख ले तो वहां पर भी उन्होंने सिर्फ मतलब 3 मैचेस के अंदर उनके स्कोर इस तरीके से 2-2, 5 और जो बाकी जो उन्होंने 50s बनाई हैं, तो उसमें भी आप देख लें कि शुरू में उन्होंने रन अप बॉल जो है वो खेला और उसके ऊपर वहां पे जो कमेंटेटर्स बैठे हुए थे वो भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि बाबर आजम को चाहिए कि दूसरे प्लेयर पे प्रेशर डालने के बजाय खुद मैच को जो है वो आगे लेके आप ये जाए, समझती हैं कि जिस तरीके से परफॉर्म करके बिग बैश के अंदर शादाब खान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे खुले हैं, तो बाबर आजम और जो दीगर खिलाड़ी में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बाशमूल मोहम्मद रिजवान के, उनके लिए वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम के दरवाजे बंद होने चाहिए? नहीं, देखिए बात यह है कि पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि क्राइटेरिया आपका क्या है। क्या क्राइटेरिया आपका बिग बैश की परफॉर्मेंस है, लीग की परफॉर्मेंस है, या फिर पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की परफॉर्मेंस है, या फिर ये कि पिछले 10 या 15 रिकॉर्ड्स निकाल के देख लें। बाबर आजम के 4 डक्स है पाकिस्तान के अंदर, जो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका और जो ट्राई नेशन सीरीज आपने खेली है, तो 4 उनके डक्स है। और आपको पता है कि वो उनको हमेशा से प्रॉब्लम रहा है लेग स्पिनर को खेलने में भी, और जिस तरीके से जो लेफ्ट आर्म जो बॉलर होता है आपका, हाँ, वो इनसाइडर उससे को भी वो जो है वो बेहतर आउट नहीं हो खेलते, जाते हैं। बिल्कुल इन स्विंग से वो हाँ, तो फंस वो जाते हैं। अंदर आने वाली बॉल जो है वो उसमें वो हमेशा जो है वो फंस जाते हैं, या वो बोल्ड हो जाते हैं या LBW हो जाते हैं। और रिसेंटली जो है वो उनका एक टेक्निकल पॉइंट भी जो है वो रेस किया गया था कि ये जिस तरीके से इनकी हेड की पोजीशन है, तो उनके प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि ये जो बाबर आजम है ये T20 के फॉर्मेट के लिए नहीं फिट हैं। आप उनसे जबरदस्ती वो काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में जो है वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मेरा स्ट्राइक रेट ऐसा है और मैं इस तरह के शॉट्स खेल सकता हूँ, तो वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका काम नहीं है। और वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो बेहतर वो आप है, काम ये जो करवा भी नहीं सकते। हिकमत अमली दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आप नहीं समझते शायद हाशमी साहब, इस वक्त अब्बास ने ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है डोमेस्टिक से लेकर हम दुनिया भर की लीग्स देखें, अब्बास आफरीदी में परफॉर्म कर रहे हैं, तो माइक हाइसन को सिर्फ वो खिलाड़ी पसंद है, वो परफॉर्मर पसंद है जिसका ताल्लुक शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो आया शादाब हो या फिर कप्तान भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही है। तो आप समझते हैं ज़्यादा फेवरेटिज्म नज़र आता है, ना चाह कर भी ये सवालात फिर उठते हैं। देखो, फॉरेन कोच आप जब लाते हैं तो उसका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होता है और सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
जिस तरह अभी बीबी भी बोल रही थी कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट दुरुस्त नहीं है, वो T20 का प्लेयर नहीं है, एक्सेप्टेड, बहुत ज्यादा बिल्कुल ये ओपिनियन रिस्पेक्टेड ओपिनियन है, लेकिन बाबर आजम का एक स्टेचर है, उसको पब्लिक प्रेशर पे लेके आया माइक हसन, जो कि गलत था। लेकिन ये फॉरेन कोच इसी तरह करते हैं, इनकी अपनी एक ओपिनियन होती है, इनकी अपनी एक थिंकिंग होती है। जब आप बाहर से लेके आते हैं और उसके ऊपर इल्जाम लगता रहा है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स को ज्यादा फेवर करता है। जब आप बाहर का कोच लेके आते हैं तो आपको उसकी ओपिनियंस का और उसकी सारी सिलेक्शन को भी देखना पड़ता है, वो अपनी सारी चीजों को जवाब दे। इसीलिए उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखवाया था कि सिलेक्शन कमेटी मुझे 20 प्लेयर देगी, 15 मैं करूंगा। तो वही अकाउंटेबल है। अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो अकाउंटेबल होगा, अगर वो बुरा करेगी तो भी वो अकाउंटेबल होगा। और बहुत से प्लेयर वाकई ऐसा लगता है कि जो अनलकी होते हैं, जैसे सुफियान मुकीम है, उसका कंपैरिजन जिस तरह चल रहा है, और कंपैरिजन है उसका नवाज से, कोई माने या ना माने, लेकिन इस तरह के एक ही जैसे बॉलर फिर आप बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। और अनफॉर्चुनेट होगा कि सुफियान मुकीम 15 में ना आ सके। इस वक्त हम देख रहे हैं बड़ी गुफ्तगू हो रही है सुफियान मुकीम के हवाले से। शाहिद हाशमी साहब, काइंडली आप इस बात पर रहनुमाई कीजिएगा। बड़ी बातें हो रही हैं सुफियान मुकीम की, उस्मान तारिक की। कसूर क्या है फैसलाबाद मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल अकरम का? अगर उनका डोमिसाइल मुल्तान का है, साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, तो क्या उनको उस तरीके से जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा जिस तरीके से शादाब को ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके से शायद कौमी टीम के कप्तान को इस वक्त ट्रीट किया जा रहा है? वो आपके लिए अच्छा परफॉर्मर रहा, चाइना मैन है, वहाँ की जो कंडीशंस है श्रीलंका की, बड़ा फ्रूटफुल वो साबित हो सकता है। आपने उसको टीम से ऐसे बाहर कर दिया परफॉर्म करने के बजाय, जैसे दूध में से मक्खी को बाहर निकाल फेंकते हैं। ऐसा नहीं है, उसको वनडे में चांस मिला। ही इज अ वेरी गुड रेड बॉल बॉलर। वो जिस तरह वापदा से खेला है, जिस तरह वो रेड बॉल में आउट करता है, उसको रेड बॉल तक ही रखें अभी, उसको वनडे में भी चांस मिला। आपके पास सुफियान मुकीम भी है, जिस तरह मैं कह रहा था कि अनलकी होगा सुफियान मुकीम 15 में ना आ सके, इसी तरह सलमान मिर्जा भी अनलकी होगा कि वो 15 में ना आ सके। अहमद दानियाल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन इन लोगों को अभी थोड़ा टाइम है। ये T20 वर्ल्ड कप आपको शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर और हारिस सऊद के साथ ही खेलना पड़ेगा। फहीम अशरफ आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर है, शादाब और नवाज आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर है। ज्यादा कोशिश तो पाकिस्तान को यही करनी चाहिए कि स्पिनिंग ऑलराउंडर्स रखें। और सबका अपना मौकिफ होता है, माइक हसन का अपना मौकिफ है, हम लोगों का अपना मौकिफ है, लेकिन माइक हसन चूंकि आपने उसको हेड कोच बनाया, इसलिए वही जवाब है। बिल्कुल, ये माइक हेसन का मौक़िफ़ है जिस पर वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितारा, आप समझती हैं इस वक्त जो सारा सिनेरियो चल रहा है, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, एक जानिब ये गुफ्तगू हो रही थी, तो इसको हम देख रहे हैं जिस तरीके से शाहिद हाशमी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि पूरा सिनेरियो थोड़ा अलग लग रहा है और ऐसा लग रहा है शायद फेवरेटिज्म वाला मैटर जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है बानिस्बतन। हम देखेंगे क्रिकेट कल्चर जो है जिसको जब प्रमोट होना चाहिए था, माँ सदाकत आपका परफॉर्म कर चुका है, उसको चांस नहीं मिल रहा। फैसल अकरम ने परफॉर्म किया, उसको आपने टीम से बाहर कर दिया। अब्बास आफरीदी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन शायद उसके लिए लॉबी बन नहीं पा रही है, उसके लिए जगह नहीं बन पा रही। लॉबी बहुत मजबूत है, दूसरे खिलाड़ियों की उसकी जगह शायद बन नहीं पा रही है। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान में हमेशा जो है वो प्लानिंग का जो है फुकदान रहा है। और अगर आप दूसरी टीमों को देखेंगे, दूसरी कंट्रीज की टीमों को देखेंगे, तो वो टूर्नामेंट की 1 साल से या 2 साल से प्लानिंग करना शुरू करते हैं और इसी हिसाब से जो उनकी नज़र में खिलाड़ी होते हैं पहले से वो उनको ट्राई करना शुरू कर देते हैं, ताकि बिल्कुल एन मौके पे ये ना हो कि अच्छा हमारी 15 जो है वो क्या होगी। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जिन लड़कों को वो खिला रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही इवेंट आता है वो बाहर हो जाते हैं और फिर वो लोग आ जाते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं होता। तो जिनको आपने ड्रॉप किया पिछली 2-3 सीरीज में ये कह करके जिनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, इनको स्पिन बॉलिंग खेलने में प्रॉब्लम होता है, फिर ऑल ऑफ अ सडन जो है वो वापस आ जाते हैं। और जहां आप स्ट्रेचर की बात करते हैं कि फलाने खिलाड़ी का स्ट्रेचर बहुत बड़ा है, उसको हम बाहर नहीं बिठा सकते, शादाब की बात कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेचर शुभमन गिल का नहीं है बहुत ज्यादा? वो तो कप्तान, मतलब वाइस कप्तान थे ना उनकी इंडिया की टीम में, लेकिन उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखी उन्होंने तो उनको लगा कि ये फिट नहीं बैठता है आपके T20 के स्क्वाड में, तो उन्होंने तो कोई नहीं, मतलब सेकंड थॉट उन्होंने नहीं ली और उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया। और जो है फिर ईशान किशन को लेके आए जिन्होंने कि सिंगल हैंडेडली वहां झारखंड का जो टूर्नामेंट है वो जितवाया। तो ये कि परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया ना उन्होंने डोमेस्टिक की। तो यही सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान में एक तो प्लानिंग की फुकदान है। आप इस वक्त 7 समंदर पार मौजूद हैं, आप क्रिकेट को देख रही हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है आपकी।
आप मास सदाकत का मुस्तकबिल कैसे देखती हैं? मास सदाकत, क्योंकि इस वक्त हालिया तौर पर हम उनकी जो परफॉर्मेंस देखें वो बड़ी शानदार रही है। फिर उस्मान तारिक से मुताल्लिक आप बार बार गुफ्तगू कर रही हैं, तो आप समझती हैं उस्मान तारिक को आपने बड़ा लेट मौका दिया, अब आप उसको उस तरीके से कंटिन्यू भी नहीं कर रहे। शादाब की टीम में आने के बाद शायद ऐसा लग रहा है जो दीगर स्पिनर्स थे, जिसमें आपने सुफियान मुकीम का नाम लिया, मैंने फैसल अकरम का जिक्र किया, उस्मान तारिक, इन सब को जो चांस मिलना था या अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, उस पर भी बड़ी सी काटी लगते हुए दिखाई दे रही है। देखिए बात यह है कि जब शादाब को इंजरी हुई थी, जब इनका एल्बो का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद जो है आपने टीम में किसी को वाइस कैप्टन नहीं बनाया। मतलब है कि आपने उनकी जगह जो है वो रिजर्व करके रखी, और आपको पहले से पता था कि आपने उनको लेना ही है, चाहे वो खेलने के काबिल हो या ना हो। मतलब पहले से डिसाइड तो आपने आप कर ये लिया था, इशारा करेंगे ठीक है ना? सितारा कि ये मतलब ये पहले ही प्लान था, ये बंदर बांट जो है पहले कर ली थी। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना, जो सब्जेक्ट टू फिटनेस होता है ना, हर दुनिया की सारी टीमों में ये होता है कि जब खिलाड़ी बाहर होता है किसी भी वजह से, तो पहले उसकी लोकल में परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिटनेस देखी जाती है। और पाकिस्तान में तो कितने कितने सालों से सितारा, फिटनेस के टेस्ट नहीं हुए। ये लोकल शायद सिर्फ यूके में आके ही खेलते हैं, पाकिस्तान में तो कोई लोकल इवेंट में हिस्सा ही नहीं लेते सिवाय PSL के। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी, सितारा साहिबा मौजूद थी और वो भी बात करी थी इस हवाले से क्या आया पाकिस्तान टीम जो है उसकी हालिया जो परफॉर्मेंस है उस पर बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया उन्होंने, और उन्होंने यही बात की कि पाकिस्तान टीम जो है उसमें जो मेरिट का मयार है वो शायद चंद खिलाड़ियों के लिए कुछ अलग है और चंद खिलाड़ियों के लिए कुछ मुख्तलिफ है, जिससे बेहतर होना चाहिए। और हमारे जो सेलेक्टर्स हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि जो सिलेक्शन का मयार है उसके मुताबिक ही वो काम करें, बजाय फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के कल्चर को मज़ीद फ़रोग देने के। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।